my dear students. Dear students, warm welcome once again in this live session of today's class. And I have already told you that this class is especially more effective for competitive point of view for those who are appearing in NEET 2021. And also it is those students who are in 12th class. We have discussed Lensmaker's formula, how to find out the focal length. They can also watch this video and they will get a good grip on these such kind of questions, how to solve these questions in a limited time. And dear students, in our previous class, what we have discussed about, that basically we have an equiconvex lens. We are talking about equiconvex lens, and the focal length of equiconvex lens, that is F, is equal to R 2 into mu of glass with respect to air, yani A mu G minus 1, and this is formula for equiconvex lens, biconvex lens. And if it is glass air, if the surrounding medium is changed, which we have discussed that simply, we can replace this A with that medium, either it is a liquid or it is any another medium. After that, if it is not a convex lens, if it is a biconcave, it is an equiconvex lens, how can we deal with that equiconvex lens? And simply, if we have this formula, we have one more formula, minus R 2 into mu G A minus 1, and this is another formula for what? For equiconvex. equiconcave, ये concave के लिए है, ये हमारी जो है ये convex के लिए है, right? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं खाली एक लेंस का इस्तेमाल करूंगा और वो है biconvex, वो है equiconvex, right? Now the question here is, sir, if it is not a convex, if it is not a equiconcave, if it is a plano-convex, if it is a plano-concave, then how can we deal with that? Yes, my dear students, this is very important, and I can put the formula, I can write the formula, and the previous section is F is equal to R2 mu G A mu G minus 1, और इसी से मैं उस फार्मूला को भी निकालूंगा, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला एक फार्मूला याद कर लो, आप इस फार्मूला को याद कर लो, कनकेव आएगी तो माइनस कर दो, प्लेनो कनकेव या प्लेनो कन्वेक्स आएगी तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। इफ इट इज ए प्लेनो कन्वेक्स, लेट्स हैव अ लुक, प्लेनो कन्वेक्स, क्यों डर रहे हो आप लोग? अरे क्यों ऑप्टिक्स से डर रहे हो? अरे हाथों का मेल है ये, बस कंसेप्ट तगड़े कर लो, ऐसे ही मत जाओ, ऐसे ही मत जाओ। सवाल आते हैं, आप ऐसे देखते हो, अरे बहुत सारे मीडियम्स मैंने रखे हैं, μ1 μ2 μ3, एक स्लैब रखे हैं, 2-4 स्लैब रखे हैं, स्लैब का यहाँ से रे आई, डिविएशन बता दो, हाँ 1 + t/μ करके फार्मूला निकाल। अरे किसी को भी आएगा, अगर गुपनस्त था वो बोर्ड के सुचा वहीं यार, बोर्ड पर ही तो उसको आप दिखा रहे हो, बोर्ड पर दिखा रहे हो तो वो खुद नहीं कर सकता। अरे नहीं, उसको दिखाओ मत, उसको सिखाओ। अरे दिखाओ मत, उसको सिखाओ। और यही तो आप लोगों की प्रॉब्लम है, रट्टा मारते हो, करते हो, सीखते नहीं हो, तो कैसे फिजिक्स को सॉल्व करोगे? सीखो, यहां से सीखो और देखो वाकई तगड़े कंसेप्ट बनते हैं कि नहीं, वाकई हमें मजा आएगा कि नहीं आएगा। चलो प्लेनो कन्वेक्स की बात करते हैं। तो इफ यू रिमेंबर इन योर 12th क्लास, और इफ यू रिमेंबर दैट, जब हमारे पास इक्विकॉन्वेक्स लेंस होती है, ये मेरे पास एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, और आपको पता होगा कटिंग ऑफ अ लेंस, और जब हम इस इक्विकॉन्वेक्स लेंस की कटिंग करते हैं, वर्टिकल कटिंग करते हैं, व्हाट हैपन टू द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस? तो मेरे ख्याल से जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये मेरे ख्याल नो एक ऐसी बनेगी प्लेनो कन्वेक्स, और दूसरी कैसी बनेगी, दूसरी ऐसी बनेगी। तो इसके ना 2 हिस्से हो गए। अब मसला ये है, व्हाट विल हैपन टू दिस व्हेन वी कट दिस equiconvex lens vertically, what will happen to the focal length? The focal length gets doubled. Important, focal length gets doubled. अगर हम कैसे वर्टिकल कटिंग कराते हैं तो इसकी जो नेट फोकल लेंथ बनेगी वो 2f बनेगी,
और इसकी भी कितनी बनेगी 2f बनेगी। आ जाओ, कितनी बनेगी भाई साहब 2f बनेगी। अब तो हमारा और भी आसान हो गया। एंड इफ यू रिमेंबर, तो दिस पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर in vertical cutting the focal length gets doubled. आप भी साथ साथ नोट करिए, the focal length gets doubled. And important point, what happened to the power? Power becomes half. अरे सीधी बात है, फोकल लेंथ इंक्रीज तो पावर डिक्रीज। कैसे पता? पावर जो है वो 1/f इन मीटर्स होता है, पावर 100/f इन सेंटीमीटर्स होता है। याद रखने वाली चीज है, रखो भाई, याद रखो, बार बार रखो, 1000 बार रखो, ये रखने वाली चीज है, बोलने वाली तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम वर्टिकल कटिंग कराते हैं तो द फोकल लेंथ गेट्स डबल्ड एंड पावर बिकम्स हाफ, राइट। नाउ जो मैंने बोला था इक्वो कन्वेक्स पर, अब अगर इसकी फोकल लेंथ हमें चाहिए, इसकी फोकल लेंथ, और इसी को तो हम बोलते हैं ना क्या, इसी को तो हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स, ये वाली प्लेनो कन्वेक्स। तो प्लेनो कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी? पूरी फोकल लेंथ r/2 है। फोकल लेंथ कितनी है? r/2 है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, प्लेनो में जाएंगे तो इसकी हाफ बनेगी, इसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। जब डबल हो जाएगी तो इसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। तो ये फोकल लेंथ इक्वो कन्वेक्स की है, ये फोकल लेंथ इक्वो कन्वेक्स, तो इसको डबल करेंगे तो इसका मतलब है ये बनेगा 2r, डबल कर दिया ना, 2 टाइम्स है ना, f के बदले तो ये लिखेंगे ना, तो इसको लिखेंगे r/2 म्यू GA -1। ये ऐसा करें हम, 2 ने 2 को मारी तो f बराबर आई r/μ AG -1। दिस इज फॉर्मूला फॉर हाउ टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स। देखो मैंने इसमें भी कनकेव को इस्तेमाल किया, इक्वो कन्वेक्स को मैंने यहां पर भी इस्तेमाल किया, और उसी इक्वो कन्वेक्स कंसेप्ट यहां पर मेरा था कि जो कटिंग कराते हैं तो इक्वो कन्वेक्स को प्लेनो कन्वेक्स कैसे बनाते हैं। जब इसकी कटिंग कराएंगे तो इसकी फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी, और जब इसकी फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी तो ये बनेगा f = r म्यू GA -1। और इफ दिस लेंस इज प्लेनो कन्वेक्स, if it is plano concave, if the lens is plano concave, simply f is equal to -r mu GA -1। ये हमारे पास फार्मूला तैयार हो। तो मुझे कॉम्बिनेशन में नेट फोकल लेंथ निकालनी है, तो मैंने खाली आपको एक लेंस याद करने के लिए बोला है, और वो बोली है कि आप इक्वो कन्वेक्स को याद कर लो। वहां से इक्वो कनकेव निकल गया, वहां से प्लेनो कन्वेक्स निकल गया, वहां से प्लेनो कनकेव निकल गया, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, of the combination of lenses। प्लेनो कनकेव के लिए आपको याद रखना है, प्लेनो कन्वेक्स के लिए हम माइनस याद कर दें। अब लेंसेज आर, अगर इस तरह का, और एक चीज, क्योंकि हम क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं तो और एक बात, lenses are combined and no gap between lenses, lenses के दरमियान कोई गैप नहीं है, नो गैप बिटवीन lenses। तो वो lenses ऐसे होंगी, ये ऐसे करके lenses होंगी, एंड इनका जो फोकल लेंथ होगा, इनका जो पावर होगा P1
प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और इनकी जो फोकल लेंथ होगी वो होगी 1/f, पावर को 1/f लिखते हैं, तो ये बनेगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4, और ये चीजें आपको याद रखनी है। शाबाश। और एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर कनकेव लेंस, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट में डाल दूंगा, फॉर कनकेव लेंस या फॉर कन्वेक्स लेंस, पहले कन्वेक्स का लेते हैं, कन्वेक्स लेंस पावर इज पॉजिटिव एंड फॉर कनकेव लेंस पावर इज नेगेटिव। ये चीज आपको याद रखनी है, इनको याद रखिए। चलिए इसको नोट करिए और हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चंस के साथ हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया नोट, हो गया। चलो आ जाओ, अब याद रखिए, फार्मूला अपने सामने रखिए, रफ अपने सामने रखिए, और जो मैं क्वेश्चन देता हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बस जितना मैंने बोला है उसी का इस्तेमाल करके मैं अब तगड़े से तगड़े सवाल को भी उसका सलूशन निकालता हूं। आ जाओ। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक सिस्टम है, क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, एम्स 2016, एम्स का क्वेश्चन है ये। एम्स का क्वेश्चन है 2016। क्वेश्चन इस तरह सा, हमारे जो कॉम्बिनेशन बनाई गई है, कॉम्बिनेशन दो लेंसेज को आपस में कंबाइन किया गया है, और कैसे कंबाइन किया है वो ध्यान से देखिए। ठीक है, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है, और यहां से इसको ऐसे कंबाइन किया गया है। ठीक है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ2। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक का μ1 है, एक का μ2 है, दोनों को कंबाइन किया है। हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, इसकी हमें नेट फोकल लेंथ f निकालना है, दोनों का कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, बस मैंने बोला है, जो मैंने रिजल्ट्स बनाए हैं उनको याद रखिए। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है r2 वो r के बराबर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बराबर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बराबर है। ठीक है, तो क्या आप इसको कर सकते हो। देखिए मैं इसको अब थोड़ा सा ईज करने के लिए इसको मैं अलग अलग लेता हूं, इन दोनों को कैसे बनाया है एक्चुअल में। ये अगर इनको आप ध्यान से देखोगे, ये एक लेंस है, ये वाली लेंस जो है ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, और ये वाली जो है ये हमारे पास दूसरी लेंस है ये। तो इनको अलग बनाएंगे, तो अलग जब हम इनको बनाएंगे तो ये वाली लेंस एक ऐसे आ जाएगी, इसका आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या बनेगा ये हमारे पास बन गई इक्वो कॉन्वेक्स। और ये जो दूसरी बन गई है वो ऐसे करके बन गई है, ये दूसरी बन गई है, ये बन गई है हमारे पास आर, और ये हमारे पास बन गई है इक्वो कनकेव, और ये हमारे पास बन गई है इक्वो कन्वेक्स। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करके ये चीज बनाई गई है। ठीक है,
अब इसकी फोकल लेंथ f1 मानेंगे, इसकी फोकल लेंथ f2 मानेंगे। जरा f1 अगर निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, f1 अगर आपको निकालनी है तो कौन सी है, ये इक्वो कन्वेक्स है ना ये, अरे कौन सी है, इक्वो कन्वेक्स तो है। तो इक्वो कन्वेक्स की फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला है इक्वो कन्वेक्स की r डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू ए जी माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, r कितना है, r तो r ही है, तो ये बनेगा r, और यहां पर हमारे पास r है और ये μ1 है, तो r ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास μ1 है, तो ये बनेगा r डिवाइड बाई 2 इंटू μ1 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास r है, μ1 माइनस 1, ये हमारे पास 1 का रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास f1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास f2 क्या आएगा, f2 यही आएगा, f2 कनकेव है, इक्वो कनकेव है, खाली यहां पर r की जगह माइनस आएगा, माइनस r डिवाइड बाई 2 म्यू जी ए माइनस 1। आपके लिए दिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं माइनस r 2 इंटू म्यू 2 माइनस 1, और इसका हम सेकंड रखेंगे। ठीक है, f1 f2 ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, यानी ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल f1 इसकी फोकल लेंथ है और ये इसकी f2 ये इसकी फोकल लेंथ है, राइट। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर पावर का देखा जाए तो पावर किसके बराबर होगा, पावर होगा P1 प्लस P2, ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं। तो ये 1/f इज इक्वल टू P1 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो ये बनेगी 1/f नेट फोकल लेंगे, 1/f1 कितना है, f1 है 2 1/2 इंटू μ1 माइनस 1 प्लस, और इस प्लस की वजह से ये माइनस है तो ये माइनस बनेगा, ये 1 नहीं है, ये r है, ये हमारे पास r है 2, ये बनेगा μ2 माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद r जो है, तो ये हमारे पास ये 1/f है। देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये जो है ना ये 1/f1 है, ये f1 के बदले है, ये f1 के बदले है, तो इसका मतलब ऊपर यहां 1 है, 1 के बदले f1 है, तो f1 के बदले ये है, तो यहां पर भी ऊपर 1 है, ये ऐसा कर दिया है, 1 डिवाइड बाई f1, f1 के बदले ये है, और जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ट्वाइस μ1 माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस ट्वाइस μ2 माइनस 1 डिवाइड बाई r। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, शाबाश, सॉल्व करने पर हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा r, दिस इंप्लाइज 1/f इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, ये जो हमारे पास 2 है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये 2 कॉमन लेते हैं, 2 इंटू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाई r। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास f इक्विवेलेंट क्या मिला, वो मिला r डिवाइड बाई 2 μ1 माइनस μ2, ये आपका आंसर है। और वहां पर ऑप्शन ये था कि जो दोनों की, इन दोनों की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, दोनों की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है f इक्विवेलेंट, दैट इज r डिवाइड बाई 2 μ1 माइनस μ2। गर्ल्स, जो मेरा यहां एम था, जो एक्चुअल में मैं खाली किसका इस्तेमाल करूंगा, मैं खाली करूंगा इक्वो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ मुझे पता है, इक्वो कनकेव की मुझे पता है। अब आसान है, अगर आपको इक्वो कन्वेक्स याद है, इक्वो कनकेव याद होगा, डेफिनेटली प्लेनो कनकेव में डबल हो जाता है, इक्वो कनकेव में माइनस हो जाता है, और इक्वो प्लेनो कनकेव में माइनस हो जाता है। बस एक रिजल्ट याद करिए, बाकी रिजल्ट आपको खुद ब खुद बनेंगे। तो एफ इक्विवेलेंट जो है वो है r किसके बराबर है, 2 μ1 माइनस μ2। ठीक है, ये हमारे पास नेट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास बनी है, इस कॉम्बिनेशन की हमारे पास ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनी है। ठीक है, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें से सवाल हमें छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा पकड़ होती है एग्जामिनर की।
एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। इसको ध्यान से देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार करिए, फिर खुद ब खुद आपको ये सवाल आ जाएंगे। अब हम और एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। चलिए, ये भी नीट वाला क्वेश्चन है, नीट 2017 की नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द सेम फार्मूला जो मैंने आपको फार्मूला बोले हैं। बस इक्विकॉन्वेक्स को याद कर लो, हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर निकल आएंगे। नीट 2017 का क्वेश्चन पेपर आप देख भी सकते हैं, नीट 2017। आ जाओ, नीट 2017 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे है ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन जो था वो ऐसे करके था, कॉम्बिनेशन में ही, ये ऐसे एक लेंस और इसी लेंस को और एक लेंस कंबाइन थी, ये ऐसे करके। क्या फर्क है, क्या फर्क है इसका भी, शाबाश। इसका μ1, इसका μ2, इसका μ1 है, ये हमारे पास μ1 है और ये हमारे पास μ2 है और बाहर में एयर है। ठीक है, ये ऐसे हमें सवाल पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम, इसको r है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये r है। ध्यान से देखना है, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं। चलिए बता दीजिए क्या आंसर आएगा। 1 मिनट का टाइम है, चलो 1 मिनट का टाइम है, सिंपल बस। अच्छा, इसको अगर अलग अलग करें तो क्या है, मेरे ख्याल से ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन पहली लेंस को अगर हम देखेंगे तो ये कौन सी है, ये पहली लेंस कौन सी है, ये है इक्विकॉन्वेक्स, है ना। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो ये वाली है इक्विकॉन्वेक्स, इक्विकॉन्वेक्स। अब इसको देखिए, ये एक लेंस है और इसके साथ ये अटैच किया गया, तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। तो ये वाली लेंस कौन सी है, इन दोनों के जोड़ से तो ये वाली लेंस बनी है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, जब इसको शिफ्ट करेंगे इसके अंदर, जब इसको शिफ्ट करेंगे इसके अंदर, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये कौन सी है, अरे ये तो इक्विकॉन्केव है। ठीक है, ये तो इक्विकॉन्केव है, इक्विकॉन्केव है। इक्विकॉन्वेक्स पता है ना, इक्विकॉन्केव पता है। ठीक है, करिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, तो कल कोई स्टूडेंट मुझे मिला था, कोई किसी सेंटर का था, वो बोल रहा है कि हम सर IITs न्यूमेरिकल करते हैं, यानी जो न्यूमेरिकल वो IIT वाले करते हैं वो न्यूमेरिकल हम भी करते हैं। तो मैंने बोला बेटा, ये जो IIT होता है ना, IIT जो है और जो नीट है, दोनों का अंतर समझिए। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं कि हम कैसे स्टूडेंट्स कैसे डिस्टर्ब होते हैं और क्यों उनको फिजिक्स इतनी मुश्किल लगती है, और क्या हमें करना है, क्या हमें पढ़ना है, किस पर हमें फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्यों उनको कहां से कहां ले जा रहे हो समझ ही नहीं आता है। फजूल चीज़ों पर इतना डिस्कस हो रहा है, फजूल चीज़ों पर इतनी प्रैक्टिस हो रही है जो कभी भी आपके एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे। ये तो आपके टीचर को कम से कम इतना आना चाहिए, आपके ट्यूटर इतना आपको गाइड करना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, अब ध्यान से देखिए। तो मैंने उसको बोला कि जो नीट है ना बेटा, नीट इज अ गेम ऑफ टाइम, नीट इज अ गेम ऑफ टाइम, नीट इज अ गेम ऑफ टाइम। यहां कितना कौन इंसान कितना इंटेलिजेंट है, ये जितने इंसान का टाइम का इस्तेमाल सही करेगा वो आराम से इसको निकाल सकता है। एंड व्हाट अबाउट द IIT? IIT इज अ गेम ऑफ माइंड। वहां पर कुछ नहीं चलेगा टाइम वाइम, वहां पर माइंड, वहां पर ब्रेन होना चाहिए। ओ ब्रेन गैसा वेल डेवलप्ड ब्रेन गैसा आसुन तत तुहंद पट न कह कांगड़ खपर आस पे, कांगड़ खपर गना आसुन कह। अगर वह कांगड़ खपर त नार बरोस चिन फुको सह वुह तिहंदी माइंड से तो सह नीटस मज लगान खपरे यस्तन। अगर थोड़ा प्रैक्टिस करू तुम, अगर टाइम मैनेजमेंट तगू तुम कड़ू नीट, मगर IIT हेकु तुम कड़ित कह, बिकॉज दैट is a game of minds, that is a game of brain and it is a game of time. That is why I am discussing these. अगर आपको एक रिजल्ट याद रहता है, उसी रिजल्ट से हम बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं और आपके 4 नंबर इस सवाल में बनेंगे, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो मैं अभी दिखाऊंगा, जो मैं दिखा रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। चलिए, होप आप लोगों को आंसर आया होगा। तब तक की तो मेनी कहानी बोजान
फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स छो तो याद प्लेनो कन्वेक्सस क्या फोकल लेंथ आसान मुन मे कोड़मुत पतमिस लेक्चरस मज या ये लेक्चरस मज प्लेनो कन्वेक्सस आसान फोकल लेंथ प्लेनो कन्वेक्स तो प्लेनो कन्वेक्स शबाश प्लेनो कन्वेक्सस आसान फोकल लेंथ क्या हो सह गसान डबल ये आसान सो आसान r/2 ये तत सोदी r डिवाइड बाय म्यू a(g)-1 ये गई फोकल लेंथ ऑफ क्या हो प्लेनो कन्वेक्स। अगर तो याद आस कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स डबल आसान 2 छान तक नीरान ये तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कनकेव क्या आसान फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कनकेव आसान माइनस r डिवाइड बाय म्यू g(a)-1 ये गई तो करो दोनवे इस्तेमाल मे वो गोथी गि लिखुन तेल पावर बराबर नेट पावर इक्वलेंट पावर सह बराबर P1 + P2 तो पावर की जगह हम लिखेंगे F इक्वलेंट दैट विल बी 1/F1 + 1/F2 राइट 1/F1 + 1/F2 तो ये बनेगा 1/F इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई देखिए ये यहां पर अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये 1 है 1 के डिवाइड बाय r तो ये ऊपर आ जाएगा तो ये हम लिखेंगे म्यू किसका है Ga तो यहां पर है म्यू1 -1 म्यू1 क्योंकि यहां गिलास की जगह इसने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज म्यू1 इसलिए इसको मैंने म्यू1 - 1 रिप्रेजेंट किया डिवाइड बाय r और यहां पर प्लस अब चूंकि ये माइनस है तो ये माइनस बनेगा और म्यू2 - 1 डिवाइड बाय r ठीक है म्यू2 - 1 डिवाइड बाय r तो ये जब हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा F इक्वलेंट इज इक्वल टू म्यू1 - म्यू2 डिवाइड बाय r म्यू1 - म्यू2 डिवाइड बाय r तो F इक्वलेंट हो गया r डिवाइड बाय म्यू1 - म्यू2 और ये आपका आंसर रहा। कुछ भी मैं नहीं करता हूं अगर आपको ध्यान रहे बस एक लेंस का इस्तेमाल करके मैं ये चीजें निकालता हूं और वहां पर ये वाला ऑप्शन था और अब जो इक्विकन्वेक्स लेंस को याद करेगा वो तो आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है इसमें कोई परेशान होने वाली बात तो है नहीं राइट ये हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए नोट करिए अब हम एक और नीट जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर आते हैं नीट का ही क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और बार बार मैं बोल रहा हूं कि अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कोई मुश्किल वाली बात इसमें है नहीं। चलिए हो गया नाउ नेक्स्ट चलिए आ जाओ नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट नीट कॉर्नर ये भी पिछले साल 18-19 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक लेंस ये ठीक है ये दो लेंसेज कंबाइन की गई है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है और यहां पर शायद वैल्यू दे भी गए हैं इसका जो वैल्यू है वो है 3/2 और इसका जो म्यू है वो है 3/2 इसका जो म्यू है वो है 3/2 और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन किया गया है ये ऐसे ज्वाइन किया गया है इनको और ये ऐसे इनको ज्वाइन किया गया है और ये जो है इसके अंदर ये वाली जो अंदर वाली लेंस है इसका जो वो है 4/3 वाटर ठीक है ये वाटर भरा हुआ है तो बताइए कितनी लेंसेज हैं इसमें इनको अगर अलग अलग करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 3 कॉम्बिनेशंस हैं एक ये है एक अंदर वाली कनकेव है और बाहर वाली कन्वेक्स है ठीक है तो मेरे ख्याल से जो इसका F1 होगा ये F1 मानते हैं इसका हम F2 मानते हैं और इसका हम F3 मानते हैं राइट तो मेरे ख्याल से यहां पर
F1 इज इक्वल टू F3, क्योंकि दोनों सेम हैं, खाली आपको F1 निकालना है, F3 वही वैल्यू होगा और आपको साथ साथ में F2 निकालना है। थोड़ी प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आपको ये वाला सवाल दिखाता हूं, ठीक है? प्रैक्टिस करिए इस चीज की, आराम से प्रैक्टिस करिए। चलो प्रैक्टिस करिए। आ गया? नहीं आया होगा। चलो, अगर अलग अलग लेंगे तो ये मेरे पास जो पहली वाली लेंस है, वो पहली वाली लेंस अब मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा इसमें आपको फिर से क्लियर हो जाएंगी बातें। ये हमारे पास जो है ये 3/2 है और इसका R हमें दिया गया है, इसका R जो है वो R हमें 10 दिया गया है। ये R जो है इसका, ये R इज इक्वल टू 10, ये R इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये भी क्या होगा 10, ठीक है? यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलता हूं, लेकिन ये ज्यादा मैं बोलता नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिए, अगर गिलास की बनी होगी लेंस, अगर गिलास की बनी होगी लेंस, तो उसका F पता है कितना आता है? वही आता है जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। फिर से, अगर गिलास, ये गिलास का है, तो जब भी आप गिलास कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स लेंस, इक्व कन्वेक्स लेंस के अंदर वाला मीडियम 3/2 होगा, यानी 1.5 होगा, तो डेफिनेटली इसकी फोकल लेंथ थी 10 ही आएगी। चलो, हमारे पास तो फार्मूला है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो F1 जो हमारे पास होगा वो F1 कितना होगा? वो F1 हमारे पास होगा, फार्मूला है R डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू GA माइनस 1। तो ये आंसर हमें मिलेगा F1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, म्यू कितना है? 3/2, म्यू है 3/2 माइनस 1। ये ऐसा करके तो हमारा F1 आएगा 10 डिवाइड बाई 2 और ये अंदर वाला 1/2, 2 कैंसल, तो ये बन गया 10। यही तो मैंने बोला था, अगर गिलास की जो लेंस बनी है, अगर गिलास की लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और बाहर वाला मीडियम एयर होगा, यानी ए म्यू जी, और अगर ये बाई कन्वेक्स लेंस होगी तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, इट इज इक्विवेलेंट टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये 10 था और मैंने पहले ही बोला इसका 10 है, तो इसका मतलब अगर F1 10 है तो इसका मतलब F3 भी 10 होगा। तो 2 का खत्म, बस एक इक्व कन्वेक्स लेंस को याद कर लो, 2 का खत्म हो गया, ये आ गया 10। नाउ जो अंदर वाली लेंस है वो कनकेव है, जो वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इसका क्या आंसर आएगा? अरे सर यही फार्मूला तो है, यहां माइनस है, वनमुत छुमना ही है, बार बार मैं बोल रहा हूं वनमुत छुमना। अब आपको समझ में आया होगा एक ही चीज से हम कितनी चीजों को निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है ये 4/3 है, तो जब ये 4/3 होगा तो हम क्या करेंगे? बस फार्मूला F3, F2 है ये सारे F2, तो ये बनेगा -R डिवाइड बाई 2 म्यू GA माइनस 1। तो ये हमें मिलेगा F2, ये हमें मिलेगा F2 इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा F2 इज इक्वल टू -10, R कितना है 10, 2 इंटू ये कितना है 4/3 -1, ठीक है? तो ये बनेगा F2 इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 4/3, ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 2, 4/3, ये बनेगा 1/3, ये बनेगा हमारा 2/3, ठीक है? तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा -30 डिवाइड बाई 2 और आंसर आया -15, ठीक है? तो ये -15 इसका आंसर आया। चलिए बढ़िया है, दोनों का 10 आया और इसका आ गया -15। अब सॉल्व करेंगे तो मैंने बोला है पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, तो फोकल लेंथ F1 बाई F इक्वलेंट किसके बराबर होगा? होगा 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, राइट? 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, तो ये कितना आएगा? 1/F1 कितना है? ये बनेगा 1/10 और ये कितना है? -1/15 और ये कितना है? 1/10। तो 1/10 1/10 ये दोनों 2/10 माइनस 1/15 15 2/10 ये दोनों
15 दैट इज 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 150, आंसर बोलो 30, 20 डिवाइड बाई 150, 0 ने 0 को मारी, 2 ने 2 को मारी, 1 बाई एफ इक्वेलेंट आ गया 1 बाई 15, नहीं ये बन गया 7.5, तो ये बनेगा 7.5 और हमारा जो एफ इक्वेलेंट होगा वो आंसर होगा 7.5 सेंटीमीटर और ये उसका आंसर था वहां पर 7.5 सेंटीमीटर। देखिए, और इस तरह से अगर तीनों क्वेश्चंस को मैंने उधर इधर कुछ भी नहीं करना है, एक इक्वू कन्वेक्स की फार्मूला याद कर दो बस, इक्वू कन्वेक्स हो, इक्वू कनकेव हो, प्लेनो कन्वेक्स हो, प्लेनो कनकेव। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको तगड़ी बात बोली है वो याद रखना है कि अगर इस लेंस का गिलास का बना हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और बाहर वाला मीडियम एयर है तो आर ही उसका फोकल लेंथ होती है। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं और नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे आना चाहिए अब आपसे, लेकिन थोड़ा इसमें ट्विस्ट है कि यहां तक तो नीट आ सकता है और जो मैं अगला सवाल दिखाऊंगा थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन इतना तो नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयर होके जाना है कि शायद पूछे और हमें ये चीज आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, चलिए अब ध्यान से देखिए सवाल क्या है। सवाल है तगड़ा और बहुत ही बढ़िया। कौन सी? कन्वेक्स। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको इक्वो कन्वेक्स ही दिया जाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इक्वो कन्वेक्स ही दिया जाता है। ये ऐसे आ जाओ, ये ऐसे, हाँ, क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, और यहां जो है ये एक लेंस, देखिए ये एक लेंस कौन सी है ये इक्वो कनकेव। ये जरूरी नहीं इक्वो कनकेव हो, फिलहाल हम इसको प्लेनो कनकेव, सॉरी ये ऐसे है तो ये प्लेनो कनकेव। और ये भी कौन सी है? शाबाश, ये भी प्लेनो कनकेव है। ये वाली क्या है? प्लेनो कनकेव। अलग अलग बनाऊं? अरे अलग अलग बनाऊं, क्या है ये, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये एक लेंस, ये दूसरी लेंस और ये वाली तीसरी लेंस। ठीक है, ये प्लेनो कनकेव, इसका F1, इसका F2, इसका F3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, लेकिन इसने यहां पर एक ट्विस्ट किया है। इसने यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है वो चेंज किया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस लेंस का, ये वाला 30 है, ये वाला क्या है? 30 है। फिर से देखूंगा मैं, हाँ ये वाला 30 है और ये वाला 20 है। अब मर गए मरदूद न फाते न दुरूद। अब देखो ये जो 30 और 20 है, अब ये इक्वो कन्वेक्स लेंस नहीं है, और जब ये इक्वो कन्वेक्स लेंस नहीं होगी तो जो मैंने अभी सिनारियो बताया वो चेंज हो जाएगा। सीधा लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, लेंस मेकर्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर इसके लिए लेंस मेकर्स फार्मूला इस्तेमाल कर। लेकिन ये दोनों हमारी काम की चीज है। ये तो प्लेनो कनकेव है, ये तो प्लेनो कनकेव है, और ये कौन सी है? शाबाश, ये भी प्लेनो कनकेव ही है। ठीक है, प्लेनो कनकेव के लिए हमारे पास, अब देखिए इसकी फोकल लेंथ निकालिए, प्लेनो कनकेव की F1 के लिए प्लेनो कनकेव की फोकल लेंथ निकालिए। तो प्लेनो कनकेव की फोकल लेंथ था प्लेनो कनकेव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम आराम से अपनी फार्मूला का इस्तेमाल कर। प्लेनो कनकेव है -r डिवाइड बाय 2 है कि नहीं है? प्लेनो के लिए 2 है, फोकल लेंथ हाफ हो जाती थी, फोकल लेंथ डबल हो जाती थी, 2 कटता था, तो वहां पर बनेगा -r डिवाइड बाय म्यू GA -1। म्यू के बदले क्या लिखेंगे? म्यू के बदले क्या लिखेंगे? शाबाश, म्यू के बदले क्या लिखेंगे? बोलो। म्यू के बदले तो है, म्यू इसका दिया गया है वो है 1.5, ये है 4/3, 1/3, अंदर वाला जो मीडियम है उसको क्रॉस चेक करते हैं वो है 3/2।
इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2, तो ये भी क्या होगा 3/2 और ये क्या होगा 4/3। ठीक है, चलिए आंसर बोलिए क्या आ जाएगा, ये आएगा -r 3/2 -1, -r 3/2 -1 आएगा ना, -r 3/2 -1। और ये कितना है इसका, देखिए ये प्लेनों के लिए ये वाली इसका जो है इसका ये है 20, इसका है 20, ये देखिए ये जो है इसका ये 20 है और ये वाला जो है ये 30 है, ये 30 है और ये 20 है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, शाबाश F1। चलिए क्या आंसर आएगा 3/2, ये बनेगा 1/2, करके दीजिए, बोलिए जल्दी जल्दी, शाबाश। -r तो ये बनेगा 20 -20 डिवाइड बाय 3/2, ये बनेगा 1/2, ये ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा -40 सेंटीमीटर। तो F1 मिला -40, तो इसका मतलब F3 कितना होगा, तो यहां ध्यान रखना है F1 और F3 बराबर नहीं होगा क्योंकि इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। और अगर हम F3 को निकालेंगे तो F3 कितना बनेगा, वो F3 हमारे पास होगा -r डिवाइड बाय 3/2 -1, -r की जगह आप लेना है 30, इसमें क्या लिया था 20, इसमें लेंगे 30, सो वो F3 इज इक्वल टू -30 डिवाइड बाय 1/2, ये छोर ये बने F3 इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वाली लेंस का देखिए, तो बीच वाला जो हमारे पास F2 है वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा हमारे पास 1/f इक्विवेलेंट। अब लेंस मेकर्स फार्मूला, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, ये बनेगा 1 डिवाइड बाय शाबाश, क्या है फार्मूला, μ2 माइनस μ1, μ2/1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये निकलेगा हमें यहां से। तो ये बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 4/3, ये -1 है फार्मूला का, 4/3 -1 इंटू 1/r1 कितना है 1/20, शाबाश 1/20 माइनस, और वो बनेगा तो ये बनेगा +1/30। क्यों, क्योंकि इसको अगर R1 को पॉजिटिव लेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, और फार्मूला का साथ में नेगेटिव है, तो ये बनेगा 1/3, इसको सॉल्व करने पर 1/3 ये बनेगा 30 + 20 डिवाइड बाय 600, ऐसा करके आएगा, तो ये बनेगा 1/3 इंटू 30 + 20 50/600, ये कैंसल आउट। ठीक है, तो ये बनेगा 5 डिवाइड बाय 0 6 3 3 0 0 3 6 18, तो ये बनेगा 360, तो 60 ये बनेगा 180, 30 से 3 6 18, तो ये बनेगा 180, तो इसका यहां पर मिलेगा 5/180, तो ये बनेगा 5/180, तो ये बनेगा 5 30, तो ये 3 30, ये बनेगा 36, तो 1/f इक्विवेलेंट मिला हमें 1/36, तो f इक्विवेलेंट मिलेगा हमें 36 सेंटीमीटर। तीनों के फोकल लेंथ हमने तो हमारे पास F1 का भी वैल्यू आ गया, F2 का भी वैल्यू आ गया, F3 का भी वैल्यू आ गया। F1 कितना आ गया हमारा, F1 हमारे पास आ गया -40, ये आ गया हमारे पास 36, और ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया -60। ठीक है, अब सेम फार्मूला पावर के लिए P = P1 + P2 + P3 करेंगे, तो F इक्विवेलेंट आ जाएगा F1 + 1/F1 + 1/F2 + 1/F3। चलिए तीनों को जोड़िए तो क्या आंसर आएगा, शाबाश, तीनों को जोड़िए तो क्या आंसर आएगा, तो ये बनेगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/-40 + 1/36 + 1/-60, तो ये बनेगा -40, ये बनेगा -1/60। ठीक है, चलिए अगर कैसे सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 360, तो 40 × 9 900 9 4 36, तो ये बनेगा -9 प्लस, तो 36 दैट मीन्स 10, यहां पर आ जाएगा 10 × 36 360 माइनस, तो ये बनेगा 6 6 0 0 6 6 36, तो ये बनेगा 6। ठीक है,
तो ये बनेगा 1/f इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये 10 9 6 15, तो ये बनेगा -5/36, ठीक है, -5/36, 5 6 30, 5 7 35, 5 2 10, तो ये बनेगा -72, 1/-72, तो F इक्विवेलेंट आ जाएगा -72 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये हमारा आपका आंसर हो गया। और ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली इक्वो कन्वेक्स लेंस, और अगर यहां अलग अलग होगा तो लेंस मेकर्स फार्मूला, इसके लिए प्लेनो कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए हमने फार्मूला निकालिए। बस 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको ये चीज आ जाएगी। अब आपको मैं एक होम असाइनमेंट देता हूं, वो आप करेंगे और मुझे उसका आप सॉल्यूशन सेंड करेंगे, और जो मुझे सॉल्यूशन पहले सेंड करेगा एज इट इज रूटीन, उसके लिए हम एक तगड़ा सा उसको हम स्वागत करेंगे बड़े अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल यही पैटर्न है जो हमारा असाइनमेंट है, वो ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या है, बिल्कुल एक लेंस ऐसे है, ये एक लेंस है, ठीक है, और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अंदर वाला जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रहेगा 1.5, 1.60 और 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ये है 1.60 और अंदर वाला 1.5, ठीक है। ये एक मीडियम है, ये सेम रहेगा, ये और ये सेम रहेगा, ये अंदर वाला। देखिए अगर आपको मेरा रूल याद होगा, ये अंदर वाला मीडियम क्या है 1.5, बाहर हमेशा, जरूरी नहीं इसके बाहर ये है, बाहर हमेशा, अगले वाले लेक्चर में बोलूंगा कि बाहर हमेशा एयर ही लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि R20 है, ये बाई कन्वेक्स है तो 20 आ जाएगा। ये 1.6 है, ये भी 1.6 है, इसको फार्मूला लगाए प्लेनो, ये प्लेनो कनकेव वाली रहेगी, प्लेनो कनकेव, और तीनों को जोड़ के आपको आंसर आना चाहिए। होप you are feeling very much better in this case, which in the questions which we have solved, and my dear students, practice it and you have to practice hard। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगी, आपका हाथ सेट हो जाएगा, एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप बिना देखे, बिना पेन लिए, और कभी कभी ऐसी चीजें मैं बताता हूं जो आपको बिना पेन के ही सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन वो कब होगा, वो जब आप तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे। होप डियर स्टूडेंट्स, आप लोग, फिर से मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा आप काशियस रहिए, एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं रे ऑप्टिक्स में वो 3 4 5 6 लेक्चर्स दूंगा, और पूरे ऑप्टिक्स को मैं कवर करूंगा, क्या आपको कॉम्पिटिटिव में पढ़ना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।